Mr. Yash, Mr. Athar Yash Srivastav, who is a highly accomplished project manager and technology strategist with a diverse background in enterprise software development, product innovation, and sustainability focused digital system, with proven expertise in both corporate and startup ecosystem. Who done his Bachelor's of Technology in Computer Science from ABES Engineering College, Masters of Technology in Computer Science from IIT Patna. With this, he is having various certifications like CSM, PMP. Over last 4+ years, he has led product development as a skill for Meta's WhatsApp business. Currently, he is serving as project manager at Appin Technology. With this, he is pioneering the development at cutting-edge carbon trade and ESG focused platform. This all make him a trusted leader in the tech for good domain. So I would like to invite our respected guest, Mr. Atharv Srivastava sir, to come upon the stage and start the session. Hi people. Thank you, IMT Group of Colleges, for giving me this wonderful opportunities to connect with you. So I believe we have a mixed group of students. We have BBA, BCA, and any other branch also here, over here? BCom. Okay, fair enough. So before starting with the session, I would like to connect with each and every one of you. So we can have a interactive session rather than being a monologue. Let's have a dialogue conversation. Getting my point? Alright, works for everyone? कितने लोग यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो एक वेल सेटल्ड कॉर्पोरेट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं? So how many people are there who wants to be an entrepreneur? Raise your hands, I can see. Okay, so we have one. Could you please stand up? The person sitting on the, I believe, the third last row. Yeah. What's your good name? Mayuri. Okay, so we have Mayuri. Mayuri, what do you know about this entrepreneurship? Okay. Okay, that's a wonderful point. Okay. Is there someone else who wishes to add certain points? Anyone else from the group? So it's a session where we both will be connecting with each other. Do not keep it in a monologue way कि just मैं बोलूँगा और आप लोग सुनोगे. ऐसा कुछ नहीं है. हम दोनों connect करेंगे तभी this session will be an output with a good productivity. ठीक है? So when we speak about this, अच्छा कितने लोगों को placements चाहिए ये बता दो. That is a very clear question. कितने लोग कॉलेज आए हैं placements लेने के लिए? हाँ थोड़ा गिरिए. College placements? Okay. So you believe in college placements? Okay. So can we have you? Can you please stand? Yeah. So you believe in the college placements? Okay. So do you wish कि college placement is a better thing? Yes, starting your business is a better thing. Both are better in their way. Okay. How do you differentiate between these two? What are your viewpoints? I just want to listen कि आप क्या सोचते हैं? So if we start a business, we need more skills, in the basis of a college placement. Okay. We need more skills. We need more time to invest in the business. Okay. Good to have you. ठीक है. So startup में basically it's not a 9 to 5 job. You have to invest your 170 hours or your 24 hours even. So how do you expect 170 hours? When I speak कि 170 घंटे देने होंगे अपने. So 170 घंटे that means कितने दिन? किसी को एक idea है? Come on, we have people from the BCom also. BCA, BCom. 170 घंटे कितने होते हैं? एक महीने में कितने घंटे होते हैं? Do we have an estimate? People, see, if you won't interact, how will the session proceed? Yes, we have. एक महीने में कितने घंटे होते हैं या एक दिन में कितने वर्किंग आवर्स होते हैं ये बताओ. Someone said 8, someone said 12. Okay, so एक on an average कोई बताएगा एक estimation लेके 10 hours. ठीक है, that works for me. So एक हफ्ते में 10 घंटे आपको रोज काम करना है and Monday to Friday is the in general working pattern for every company. ठीक है, that means कि 50 hours per week.
हफ्ते एक महीने में 4 हफ्ते, तो दैट मींस 200 आवर्स. सो 200 आवर्स इन्वेस्टिंग ऑन द कॉर्पोरेट और ऑन द बिजनेस, दोनों के अलग रिटर्न्स हैं. ठीक है. So if you see this particular slide, so if you are employed for a $25 per hour, okay, so $25 is the average salary in the US. If you migrate somewhere, कि आप कभी US जाते हो for the higher studies or for the higher corporate, then it's your averagely $25 per hour. And if you are a business owner and if you sell something, keeping things in mind कि अगर तुम्हारा $25 per product बिकता है, so eventually ये statistics एक point तक आके सेम रहेंगे, that is 365 products per month. ठीक है. But इसमें एक advantage है when you are into a business owner, so you cross this particular limits and then you have no boundaries. ठीक है. अच्छा एक चीज बताओ, कभी सुना है कि बिजनेस में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है या जो ऑफिस रोज डेली अप डाउन कर रहा है उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है? जो ऑफिस रोज अप डाउन कर रहा है. ठीक है. सो इनिशियली ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई एक बताएगा, कोई भी एक जना, कि क्यों बिजनेस लोगों को बेटर लगता है, कि उसमें कोई प्रेशर नहीं है, कुछ वैसा नहीं है, बट कॉर्पोरेट में इट्स जस्ट की सर्वाइविंग द डे. पीपल, इट्स अ क्वेश्चन टू एवरीवन. कोई भी हाथ रेस करो और रैंडमली यू कैन स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन. आप बताइए, इतना मुस्कुरा रहे हैं कि बातों को छुपा रहे हो. आप चुप. इट्स सर ने क्वेश्चन सुन रही है. आई विल रिपीट माय क्वेश्चन. हिंदी में बोलो. कॉर्पोरेट में आपको लगता है कि आप 9 to 5 आवर्स की जॉब सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस का एक assumption है कि जो बिजनेस कर रहा है वो थोड़ा फ्री होके काम करता है. ठीक है, ये assumption है. एवरीडे सेम रूटीन. एवरीडे सेम रूटीन. एवरीडे सेम रूटीन. बिजनेस में या कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट में. ओके, ठीक है. सो बिजनेस में क्या प्रेशर नहीं होता है? इफ आई एम अ बिजनेस ओनर और यू आर अ बिजनेस ओनर, क्या आपको वहां पे प्रेशर डील नहीं करना होगा? यस और नो. कम ऑन. यस और नो. करना होगा. कॉर्पोरेट में आपका सिर्फ मैनेजर आपके सर पे खड़ा है, बट बिजनेस में यू हैव स्टेक होल्डर्स, यू हैव शेयर होल्डर्स. ठीक है, यू हैव क्लाइंट्स, यू हैव पीपल हु आर ओनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स से कि इफ आई एम अ ओनर, देयर आर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है. ठीक है. सो एक बिजनेस ओनर को उन सबको भी मैनेज करना है विद देयर एम्प्लॉइज, कि अगर कोई एम्प्लॉइज का कंप्लेन भी रेज होता है उसको भी पैरेलली मैनेज करते हुए. गॉट माय पॉइंट? ओके. Okay. Will you please change it? Okay. It is on my. Fair enough. So, please change one more slide. Okay. So, what is TAM? BBA students. BBA students are more familiar कि business में जाना है, तो TAM क्या होता है, SAM क्या होता है? अच्छा, मार्केट रिसर्च वाले कोई है यहाँ पे जो मार्केट के बारे में पढ़ता हो? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, कभी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हो कि किस चीज का मार्केट ग्रो कर रहा है? गूगल सारे यूज करते हैं? डू वी यूज गूगल इनसाइट्स एज वेल? इनसाइट्स यूज करते हैं. ठीक है. सो इफ इन केस अगर मैं पूछूं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स में क्या ग्रो कर रहा है, या फिर तुम एक प्रोडक्ट ओनर हो, ठीक है, ओके, पीपल कैन वी हैव दिस अटेंशन ओवर हियर? ओके, कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं. लेट्स से एक गिटार का स्ट्रिंग होती है और एक गिटार को किस चीज से प्ले करते हैं? आइदर इट्स फिंगर्स और इट्स. डू वी हैव म्यूजिशियंस? कोई भी किसी ने गिटार यूज किया है, प्ले किया है कभी गिटार? किसी ने भी गिटार प्ले किया है या यस और नो? यू हैव प्लेड. ओके. सो गिटार को किस तरीके से प्ले किया जाता है? आइदर इट्स विद फिंगर्स और हाँ. सो दैट इज अ स्ट्रोक. सो वी स्पीक कि अगर एक स्ट्रोक के बारे में बात करें, प्लीज इलाबोरेट एक स्लाइड और मूव करो. ओके. सो देयर आर टू मार्केट्स. एक टोटल अवेलेबल मार्केट होगा और एक सर्विस अवेलेबल मार्केट होगा. ठीक है. सो टोटल अवेलेबल मार्केट के बेसिस पे क्या स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है या सर्विस अवेलेबल के हिसाब से? सर्विस अवेलेबल के हिसाब से. ठीक है. सो इफ वी से कि म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इट्स 19.1 बिलियन डॉलर की हो गई म्यूजिक इंडस्ट्री, या एन नंबर ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है. बट सर्विस अवेलेबल सिर्फ वो होता है जहां पे कि आप सर्विस एक पर्टिकुलर यूजर्स को प्रोवाइड करो. सो लेट्स से कि अगर वर्ल्ड की इंडस्ट्री म्यूजिक की 19 बिलियन डॉलर्स की है, सो क्या आप पूरे वर्ल्ड को सप्लाई दे सकते हो? अच्छा, एक बात बताओ, वी हैव पीपल फ्रॉम BCA. एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बिजनेस को चलाने में क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है,
ये बताओ. Capital. Capital, good point. Who said capital? Very good. Next, planning. Very good. Who said planning? See, raise hand so that I can have a better view कि कौन बता रहा है. What else? What else? हाँ. Place. Okay. 5 more things from anyone. Sir, please. Transport. Resources. Very good. Transport. Transportation, one of the essential feature. Can we have one more? Area and backup. Yes. Human resource. Human resource. So Idea. most of the HR or the normal employees. Okay. Resources. Any other person who wants to add points? Idea. आइडिया एंड वेयरहाउस. ओके, सो बिल्कुल सही बात है. जितने भी पॉइंट्स स्टेट किए आपने वो सारे सही है. ठीक है. इन पॉइंट्स को कौन डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस किस वे में ग्रो करे? दैट्स यू. सो एवरीवन हु वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. अच्छा, एंटरप्रेन्योर में भी दो चीजें होती है. वन हु विश टू स्टार्ट देयर बिजनेस और वन हु विश की स्ट्रेटेजिक हेड बने कि कहां उन्हें बिजनेस को ग्रो करना है या डायरेक्शन देनी है. सो कितने लोग बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं? Please raise your hands. Is there someone जो कि बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है? Sir, I am in touch with you. ओके, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक ऑप्टिमाइज वे में डायरेक्शन देना चाहता है? सो व्हेन वी स्पीक अबाउट दिस कॉर्पोरेट में क्या होता है ये बताओ. किसी को कॉर्पोरेट का एक्सपोजर है? इंटर्नशिप्स किए किसी ने? किया? किसमें किया इंटर्नशिप? CS executive. Okay, what were your role? Sir, activate So activity accounts. Okay, good enough. What next? Okay, so what's your name? Rudrakshi. So Rudrakshi ने एक चीज जो किया, so she was an accountant executive from the CS branch. ठीक है? So what she did was कि process को optimize किया. Let's say you worked in a startup or an MNC. You worked with an MNC. Okay. So देखो MNC अगर ग्रो कर गई है doesn't mean कि अब उसे ग्रोथ की और रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. That is a false assumption अगर आप ये लेके चल रहे हो. So we have process executives, we have strategic heads who will guide you कि कैसे आपको डायरेक्शन देनी है so that you can be a top 4. अच्छा, बिग 4 के बारे में जानते हो? बिग 4 कंपनीज. KPMG का नाम सुना है? डेलोइट का सुना है? PwC? ओके. सो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ऊपर है? मैकिन्सी का नाम सुना है? नहीं. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप? BCG? ओके. सो पीपल आराम से. अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम सुना है? Amex. ठीक है. सो ये इतने पॉपुलर क्यों नहीं है जैसे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप? क्यों इतना पॉपुलर नहीं है बट डेलोइट और KPMG ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? क्यों? बिकॉज they have something called as the resource optimization. ठीक है? We'll speak with that particular point also. Next. Okay. मुझे एक चीज बताओ, अगर if you are a product owner, क्या तुम्हें मार्केट में असेस करने की जरूरत है कि कंपटीशन में कौन-कौन है? या क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं? Can we? मैं सुन नहीं पा रहा. Like if you are saying something, people, क्या कंपटीशन का असेसमेंट जरूरी है या नहीं? ग्रेट एनफ. कंपटीशन क्यों असेस करना जरूरी है अब ये बताओ. रैंडमली कोई भी बताओ क्यों कंपटीशन को असेसमेंट जरूरी है? कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो मुझे जानना क्यों जरूरी है? compete करने के लिए. What next? Good point, sir. What's your good name? Prashant. Prashant. Okay. Anyone else? अच्छा, मार्केट में सस्टेन कैसे करोगे? मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया. How will you sustain in the market? ये बताओ. Any idea कि कैसे सस्टेन करोगे? स्टार्टअप कोई भी कर लेता है. 90% ऑफ द स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, एक महीने में बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट में सस्टेन करने का नॉलेज नहीं है. ठीक है? या फिर नॉलेज है तो वो रिसोर्सेज या वो एक बेसिकली रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है? सो मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताओ. कोई भी बताओ.
अच्छा क्लोथिंग ब्रांड्स देखें, क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स मार्केट आज बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स है, वी हैव ज़ारा, वी हैव H&M, और कौन कौन से क्लोथिंग ब्रांड्स है? ज़ूडियो, स्निच, H&M, what next? Someone said Marks and Spencer or something like that. Okay, so देखो आज क्लोथिंग ब्रांड्स क्यों सरवाइव कर रहे हैं? There would be क्या सर? Nike, good one. ठीक है, we have sports. Okay, तो we have a bifurcation as well. देखो मार्केट को बाइफर्केशन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाट वी सेड इन द प्रीवियस थिंग कि आपका टोटल अवेलेबल मार्केट और टारगेट मार्केट दोनों अलग चीजें हैं. सो क्लोथिंग इंडस्ट्री इज अ टोटल अवेलेबल मार्केट, बट टारगेट मार्केट आपका वो बाइफर्केशन करेगा कि आपको किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है. ठीक है, सो असेसिंग दैट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि आपके पास एक रिसोर्सेज की लिस्टिंग होनी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जो कि वाइड डोमेन से हो, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस डोमेन में क्या एक्सपर्टीज चल रही है. एंड स्टेइंग अप टू डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वर्क्स? ओके, सो हाउ डू वी सेट अप आवर बिजनेस? किसी को आइडिया है कि बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं? लीव दिस स्लाइड. अभी ऐसे बताओ कि बिजनेस सेटअप कैसे करोगे. वन सेड कि वेयरहाउस होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए. दैट इज अ थिंग फॉर द बिजनेस. लेकिन उसे सेटअप कैसे करें? रजिस्टर करवाएंगे. बिजनेस को रजिस्टर करना होगा. वेरी गुड. रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को वेबसाइट पता है कैसे रजिस्टर करते हैं अपने बिजनेस को? जोर से बोलोगे तो मैं भी सुन लूंगा, हो सकता है कि कोई बेटर आइडिया मिले. अच्छा, बिजनेस कहाँ पे चलता है ये पता है? बिजनेस के लिए एक ऑफिस स्पेस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ठीक है, क्या बिजनेस बिना ऑफिस स्पेस के भी चल सकता है? चल सकता है. ठीक है, सो कोई एक एग्जांपल दे सकता है कि कौन सा बिजनेस बिना ऑफिस स्पेस के भी चलता है? ई कॉमर्स. वेरी गुड. ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल जो जिसमें कि ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए. हाँ, उसके प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेबसाइट सर्विसिंग या मेंटेनेंस के लिए दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट उस बिजनेस को रन करने के लिए तो नहीं चाहिए ना. ठीक है, वर्क्स. So first thing is कि बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए you require an accountant. Why is an accountant required? To manage the capital and funds. Very good. What else? एक अकाउंटेंट क्या क्या बता सकता है आपको? She said कि फंड्स को मैनेज करने के लिए we require an accountant, which is very true. उसके अलावा अकाउंटेंट का क्या रोल होता है? टैक्स मैनेजमेंट. वेरी गुड. ठीक है, सो these are the two most important things जो कि एक अकाउंटेंट करता है. सबसे पहले कि आपका जो भी फंड्स है, ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी फंड प्रोवाइड हुआ है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. स्टॉक्स पे खेलते हो? किसी कोई स्टॉक मार्केट यूज करता है? एसआईपी करते हो? किसी ने भी एसआईपी नहीं की? ट्रेडिंग की है? ट्रेडिंग का भी नहीं आइडिया है? क्या है? क्या इसने कभी ट्रेडिंग की है? कभी ट्रेड नहीं किया? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सुना है? फॉरेन एक्सचेंज सुना है? गुड. सो फॉरेन एक्सचेंज क्या काम करता है बेसिकली ये मैं बताता हूँ. देखो, आप जो भी पैसा लगाते हो वो बिग बिजनेस कंपनीज में लगाते हैं. लेट्स से कि मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ और मैं अपना कोई भी पैसा जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में लगाता हूँ. ठीक है, सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड किस किस में डील करती है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड जो है लेट्स से कि मारुति सुजुकी, कुछ बैंक्स, कुछ स्मॉल स्टेक होल्डर्स, इन सबको एक्यूमुलेटिवली डील करती है. ठीक है, वो क्या करती है कि मैंने जितना भी पैसा लगाया वो उन इंडस्ट्रीज में लगाएगी और जब उस इंडस्ट्री की सेल बढ़ेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा. दैट्स द सिंपल थिंग. ऐसे ही मार्केट बढ़ता है या घटता है. ठीक है, सो व्हेन यू स्पीक कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां ज्यादा दिख रही है, दैट मींस पीपल आर ग्रोइंग, उनका पैसा बढ़ रहा है जो ट्रेड करते हैं. ठीक है, देन वी हैव ग्रेट बिजनेस नेम. सो एक बार एक अकाउंटेंट आपके पास आ गया, नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको अपना बिजनेस चलाना किस हिसाब से है. ठीक है, कोई भी एक बिजनेस नेम सजेस्ट करना. कोई भी एक बिजनेस नेम. किसी ने स्टार्ट किया है अपना? कोई फैमिली बिजनेस होगा सबका. बहुत लोग हैं यहाँ पे जिसका फैमिली बिजनेस होगा. कोई भी एक अपने फैमिली बिजनेस का वो नेम बताओ.
जिस चीज का भी बिजनेस है, किसी का बिजनेस है यहाँ पे? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेवल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस है या नहीं है ये बता दो। पीपल, हाँ यू हैव, ओके। AMK Enterprise. AMK Enterprise. So what does AMK Enterprise do? What's your good name? Monica. Okay. It's a laser cutting business job. It's a laser cutting business job. So with the laser you cut the glasses or what? Wood products. Okay. So we have AMK Enterprises और AMK Enterprises के नाम से कोई दूसरा बिजनेस रजिस्टर नहीं हो सकता. So that's the one of the greatest thing कि AMK Enterprise को जब भी कोई भी चीज, let's say कि एक बिजनेस या एक टेंडर मिलेगा, so that will be solely कि AMK Enterprise उसके end to end तक responsible होगा. No other business unit can be interfering with AMK Enterprises. हाँ, ये AMK Enterprise के पास पावर रहेगी कि AMK Enterprise जिसके साथ डील करना चाहे वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकता है. ठीक है, that works. Then again we have legal entity. अच्छा, बिजनेस कितने तरीके से रजिस्टर होते हैं ये पता है? अच्छा, सुना है कि जोमैटो में एक फाउंडर होगा, एक को फाउंडर होगा. फिजिक्स वाला दो दोस्तों ने शुरू की, जोमैटो दो दोस्तों ने शुरू की, क्लास प्लस दो दोस्तों ने शुरू की. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली शुरू हुई थी, जैसे फेसबुक. ठीक है, एक फाउंडर था, उसके नीचे 10 रिसोर्सेज थे या एम्प्लॉइज थे. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है जोमैटो, क्लास प्लस, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में और एक जो फेसबुक जब स्टार्ट हुई थी, क्या डिफरेंस होगा? पार्टनरशिप फर्म. हु सेड पार्टनरशिप फर्म? वेरी गुड. सो पार्टनरशिप फर्म किसमें स्टार्ट हुआ था? जोमैटो. ओके, सो जोमैटो इज अ पार्टनरशिप फर्म. देखो, हर बिजनेस का एक अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग सोर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज होगी. Okay. So when we speak about this sole proprietorship, so sole that means single person. ठीक है? Single person is responsible for each and everything. अगर कोई आप कोई फ्रीलांसिंग करता है यहाँ पे? Do we have a freelancer or something? Okay, ठीक है. If not, no worries. एक फ्रीलांसर क्या करता है? अगर लेट्स से कि एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाना है, वेब डेवलपमेंट किया किसी ने? किसी ने भी वेब डेवलपमेंट किया है? HTML, CSS, React, JS, Python, किसी ने नहीं किया? You guys are into second year or third year? Non-technical background. Okay, so okay, BCA ने भी. अभी right now BCA is not sitting. Okay, BCA is not set. Fair enough. देखो, sole proprietorship में you are the entire business owner. अगर उसमें कुछ प्रॉफिट होता है वो भी आपका है, अगर आप उसमें कुछ घाटा होता है तो भी आपका है. ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि विदाउट एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट या विदाउट एन इनिशियल प्लानिंग यू कैरी ऑन दी थिंग्स. मतलब कि देखा जाएगा कि कैसे बिजनेस चलेगा, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है. तो उस केस में एक वर्स्ट सिनेरियो भी आता है कि बैंक जो है ऑक्शन कर देता है. ठीक है, ऑक्शन के बारे में सुना है? ऑक्शन क्या होता है, कोई बताएगा ऑक्शन क्या होता है? नीलामी. उसे नीलामी. अरे जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोला. ओके, गुड सर. सो बैंक उस समय नीलामी करता है. दैट मींस कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे या आपके पास जितने भी प्रॉफिट्स थे वो बैंक अपने पास अंडर ले लेता है. ठीक है, सो सोल थिंग कैन बी अ गुड थिंग, कुड बी अ बैड थिंग. ठीक है, बट उससे वर्स्ट चीज भी कुछ नहीं हो सकती है अगर इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान. वर्क्स. देन कम्स आवर जनरल पार्टनरशिप. द पर्सन हु सेड की पार्टनरशिप फर्म, that's really great कि आपको आइडिया है कि what is a partnership firm. So partnership firm में एक clear understanding होती है कि अगर मैं कल को बीमार पड़ गया या मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया तो जितनी भी लायबिलिटीज है वो मेरे ऊपर ना आए, वो कंपनी जो है ओवरटेक करेगी. ठीक है, या फिर अगर मेरी वजह से मैंने कोई XYZ रीजन से कोई चीज अननॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर दी या फिर नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाके कर दी तो उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, रादर इट इज इन कोर्ट या फिर जहां पे भी, that will be over me. उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, then we have S corporation and C corporation. अच्छा, when we speak about shareholder, एक बहुत ही इंटरव्यू फेमस हुआ था एलॉन मस्क का. There was a one guy who said कि I own 1 share of this Bitcoin. देखा है किसने? YouTube देखते हो, इंस्टा चलाते हो, आज जाके देखना YouTube पे कि there is an interview of Elon Musk and there is a
guy sitting in front of the audience, ठीक है? He said कि I own just a single share of this Bitcoin, ठीक है? वो क्या है कि particularly you can have hundreds of shareholder in S corporation. Remember, जब भी business start करना, either you start with the partnership form or with the corporation form. Until unless you do not have a lack of abundant of resources. या तो घर पे बहुत पैसा हो, तो sole proprietorship के हिसाब से आप start कर सकते हो. But if you are planning something कि आप investors के पास जाओ, start with an S corporation, ठीक है? An S corporation allows you for this shareholder part, ठीक है? आप hundreds of shareholder रख सकते हो, but up to 100 in an S corporation. Shareholder का मतलब समझते हो? What is a shareholder? Equity जिसके पास हो, और कुछ लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो शेयर होल्डर का क्या होगा बताओ? शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा? ओनर ऑफ द कंपनी, वेरी गुड. और हिस्सेदार रिश्तेदार नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं सर, हिस्सेदार. हिस्सेदार. ओके ओके, आई एम सो सॉरी, हिस्सेदार. ठीक है. सो हाँ, तो एस कॉर्पोरेशन के अंडर में आपके पास अप टू 100 हिस्सेदार हो सकते हैं, ठीक है? बट जब आप सी कॉर्पोरेशन पे आते हैं तो सी कॉर्पोरेशन आपके लिए ओपन कर देता है डोर्स फॉर अ एंटायर वर्ल्ड, जहां पे कि आप दो नेशंस के अगेंस्ट में भी आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं. अब दो जगह पे बिजनेस रजिस्टर्ड है तो अलग अलग टैक्सेस आएंगे. हो सकता है इंडिया का टैक्स अलग हो सकता है नीदरलैंड या सऊदी अरेबिया में टैक्स सिस्टम अलग हो. सो उस सिनेरियो में आपको दो अलग बार टैक्स पे करना होगा, अलग रेगुलेशंस के हिसाब से करना होगा. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स. पता है कि व्हाट्सएप कहीं कहीं पे बैन है. चाइना में क्या कौन सा ब्राउजर चलता है ये बताओ? चाइना में कौन सा ब्राउजर चलता है? गूगल तो नहीं चलता है, इतना तो पक्का है. यूसी ब्राउजर, वेरी गुड. सो हर कंपनी, हर कंट्री का अपना नॉर्म्स होता है कि वो किसको इनवाइट करते हैं कि वो उस रेंज में या उस बाउंड्री के अंदर में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. गॉट माय पॉइंट? ठीक है. सो ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपको ये कहती है कि किसी दिन अगर लेट्स से कि मैं एक फाउंडर हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इफ आई डू नॉट हैव अ करंट बैंक या कोई भी कंपनी के रजिस्टर्ड बैंक नहीं है या कंपनी के अगेंस्ट में मैं किसी चीज पे कोई डील नहीं करता, सिर्फ अपने नाम पे करता हूं, तो आई विल बी एट लॉस. बट अगर कंपनी के नाम पे सारी चीज मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और मैं अगर सिर्फ कंपनी के बेसिस पे एक कंपनी व्यू पे डील्स लॉक करता हूं, तो उसका प्रॉफिट भी कंपनी को जाएगा, उसका लॉस भी कंपनी बियर करेगी. आई वोंट बी एट एनीथिंग. मे बी हो सकता है कि मैं एक सिंगल फाउंडर हूं, मे बी एक सोल ओनरशिप रखता हूं, बट इफ आई हैव दिस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सो द कंपनी विल बी एट लॉस, आई वोंट बी एट लॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वर्क्स? ठीक. ओके, सो हाउ डू वी सेट अप आवर टैक्सेस? जीएसटी भरा है किसी ने? कभी भी जीएसटी भरा है किसी ने? भरा? Okay, so do you have a business or something? Father has a business. Okay. So do you have an accountant as well? Okay. What's your good name? Mayuri. So Mayuri, let's say कि एक business है. So she has an accountant. She has these four things very essentially in her mind. कि she will have an accountant जो कि सारे norms, rules and regulation को stay up to date रखेंगे. अच्छा, tax policies change होती है ये पता है? पता है? PF change होता है क्या? एम्प्लॉइज का पीएफ कटता है, इतना पता है? व्हाट इज अ पीएफ? प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड चेंज होता है कभी? अच्छा, पे स्केल सुना है? गवर्नमेंट में पे स्केल होता है. 8th पे कमीशन लागू हो गया, 9th पे, 10th पे, ये सुना है? पे कमीशन गवर्नमेंट में कभी नहीं सुना है? किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में है? सुना है सर? ठीक है. सो जब पे कमीशन की बात करते हैं, सो जब पे कमीशन लागू होता है उस हिसाब से टैक्सेस भी आपके कटते हैं, ठीक है? सो स्टेइंग अप टू डेट विद द टैक्सेस और उस फॉर्म्स को, रिलेटिव फॉर्म्स को फिल नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा टैक्सेस भी कट जाएंगे, बिकॉज आपने वो चीजें या नॉर्म्स को वायलेट किया है, ठीक है? सो दैट कम्स अंडर फाइन एज वेल. नाउ ओपन अप योर बिजनेस अकाउंट. अच्छा, कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं ये बताओ? फेसबुक यूज करते हो? ठीक है. एफबी पे दो अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है. सिमिलरली इंस्टा पे भी होता है. इंस्टा पे भी देखा ना? ओके. तो एक बात बताओ, बिजनेस अकाउंट में ऐसा क्या होता है जो एक नॉर्मल अकाउंट में नहीं होता है? हाँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड.
क्या होता है बिजनेस अकाउंट में, ये बताओ। कुछ तो ऐसा होगा कि दोनों में अलग कुछ अंतर है। ट्रांजैक्शन लिमिट, इंस्टाग्राम पे ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो क्रिएटर्स के लिए होता है। क्रिएटर्स के लिए होते हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? डिजिटल मार्केटिंग किया किसी ने कभी? किया डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, किसी ने भी किया है? डू वी हैव एनी पर्सन इन द हाउस कि जिसने डिजिटल मार्केटिंग कभी किया हो? व्हाट्सएप मार्केटिंग की है? नहीं किया। ओके, सो बिजनेस अकाउंट का सेटअप करने का ये प्रोविजन होता है कि पहले ब्लू टिक, देखा है, पहले ब्लू टिक जो है वेरीफाइड बैच कुछ लोग को मिलता था, अब तो पेड हो गया है, अब तो पैसे दो तो मिल जाता है। बट पहले क्या होता था कि आपका बिजनेस अकाउंट वेरीफाई होता था, आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने टर्म से मतलब लाइफ टाइम से इस अकाउंट पे डील कर रहे हो, अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि एसोसिएटेड होती थी। सो वो क्या करता था, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है आपके कंज्यूमर्स में। देखा कभी आप कभी भी व्हाट्सएप खोलना, उसमें देखना अमेज़न के ऊपर ब्लू टिक आता है, ठीक है, ऐसे ही तरह एन नंबर ऑफ थिंग्स जिस पे ब्लू टिक आती है, ठीक है, नाइकी पे आता है, एडिडास पे आता है, व्हाई? क्योंकि दे हैव अ ट्रस्ट with their customers. Works? तो business account open करना is a very essential part to gain trust with your consumers. Okay, so how do we get this financial planning? एक बिजनेस सेटअप कर लिया, मान लो कि टैक्स वगैरह के लिए अकाउंटेंट आपने ऑनबोर्ड कर लिया, सब चीज ऑनबोर्ड कर लिया, रिसोर्सेज यू हैव। अब हाउ विल यू मेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करोगे? The first thing is कि पता होना चाहिए कि गोल क्या है तुम्हारा, ठीक है। जब तक गोल नहीं पता होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको बिजनेस किस डायरेक्शन में ले जाना है। जैसे लेट्स से एएमके एंटरप्राइजेस, सो अगर एएमके एंटरप्राइजेस एक लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी को क्या मैं बाहर भी बेच सकता हूँ? व्हाइट लेबल सुना है? व्हाइट लेबल, रेड लेबल, रेड लेबल नहीं यार, रेड लेबल चाय का है, वो वाला नहीं है। अच्छा वो भी है, लेकिन उस बारे में नहीं जाते अभी रेड लेबल के। व्हाइट लेबल एक बेसिकली ब्रांडिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि आप अपना प्रोडक्ट बाहर डिलीवर करने के लिए ओपन हो जाते हो, ठीक है। सो लेट्स से कि एएमके एंटरप्राइजेस का एक लोगो होगा, एक वेबसाइट होगी, ठीक है, वो ये ऑफरिंग्स प्रोवाइड करता है। बट जब वो आउटसोर्स करेगा किसी को, दैट कम्स अंडर द व्हाइट लेबल पार्ट। व्हाइट लेबल क्या इंश्योर करेगा कि आपने जो भी एक वेबसाइट बनाई है उसके सोल यूजर्स आप भी ला सकते हो और मैं भी ला सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स अ हैंडशेक मेथड कि व्हाइट लेबल में जितने भी पार्टनर्स ऑनबोर्ड होंगे वो हमारे म्यूचुअल पार्टनर्स होंगे। दैट्स नॉट बाय यू, दैट्स नॉट बाय मी, ठीक है। वर्क्स? ओके, सो फंड कैसे रेज करेंगे ये कोई बताएगा कि कैसे फंड रेज करते हैं? शार्क टैंक। ओके, शार्क टैंक में कौन बैठता है? इन्वेस्टर्स बैठते हैं, वेरी गुड। और कैसे फंड रेज कर सकते हैं? मैं तुम लोग से सुनना चाहता हूँ कि फंड कैसे रेज करोगे? पर्सनल कैपिटल होगा, ठीक है, इन्वेस्टर्स होंगे और आईपीओ। हु सेड आईपीओ? वेरी गुड। व्हाट इज एन आईपीओ मैम? वेरी गुड। ओके, लाइक रियली गुड कि पीपल आर अवेयर कि कैसे कैसे करना है। सो वन साइड कैपिटल, वन साइड इन्वेस्टर, वन ऑफ द गर्ल्स सेड आईपीओ। और कोई मेथड है? और भी कोई मेथड है? I cannot hear you if you are saying something. Bank loan, very good sir. Okay, so small banks एक always preferable method रहता है for the loan part, ठीक है। देखो, for personal perspective I'll always recommend कि you go for the small banks for this finance sector, ठीक है, क्योंकि small banks ये आपको assure करेंगे कि अगर आपके पास documentation कम भी है, ठीक है, then also you get a personally loan, ठीक है। पर्सनल लोन के बारे में सुना है? आइडिया पर्सनल लोन क्या होता है? बैंक से मिलता है। क्या एडवांटेज है पर्सनल लोन का? अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुना है? ठीक है। लाइफ साइकिल पीरियड सुना है कि कितने टाइम में आपको लोन को पे बैक करना होता है? वो भी पता है, ठीक है। सो व्हेन यू टेक अ पर्सनल लोन
or when you take a loan for the business or something like that, so you get a particularly larger amount of time. जो चीज आपको पर्सनल लोन लेते तो 3 साल में पे करना होता, अब अगर ये कंपनी के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड है, ये लोन आपने लिया है, तो 5 साल में आप कर सकते हो. ठीक है? So that is one of the essential things. Then comes your business plan. एक प्लान जिसको एग्जीक्यूशन करना है किस वे में, उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होना बहुत जरूरी है. ठीक है? So if you are something for the laser technology, you cannot move for like hammer से या axe से wood cutting. No, that's not your point. अगर आप लेजर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो, so eventually you have a plan कि 3 महीने में यहाँ तक पहुंचेंगे, 6 महीना, साल भर, 3 साल तक यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने लगेगा. ठीक है? So we have एंजल इन्वेस्टर के बारे में सुना किसी ने? What is an angel investor? कुछ भी आइडिया हो एंजल इन्वेस्टर के बारे में? ओके, ठीक है. नहीं भी है तो I'll guide. देखो, फंड्स रेज करने के लिए 4-5 मेथड्स है. Either you go for an investor. एक इन्वेस्टर में भी 2 आते हैं, एंजल इन्वेस्टर और एक वेंचर कैपिटल्स. या फिर घर से बहुत पैसा हो कि भाई बहुत पैसा है मेरे पास, मैं अपना पैसा लगाऊंगा और उसके बाद बिजनेस रन करूंगा. Which is very true. इसीलिए आजकल कंपनीज आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द इंटर्नशिप्स. ठीक है? तो 6 महीने वो इंटर्नशिप कराती है, देन दे कन्वर्ट यू टू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट. या फिर क्रेडिट कार्ड्स. इफ यू हैव अ गुड बैलेंस, यू कैन हैव अ क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकते हैं. ठीक है? ओके. सो स्टेजेस ऑफ रेजिंग. फंड को रेज करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, हमेशा याद रखना. सबसे पहले सीड स्टेज. सीड स्टेज का अच्छा, सीड का मतलब समझता है? सीड का मतलब क्या होता है? बीज. अगर आपका स्टार्टअप इतना सा है अभी, सो इनिशियली कोई इसमें पैसा डालेगा नहीं. इसमें पैसा कौन डालेगा? ओनर डालेगा या पार्टनर्स डालेंगे, जिन्हें आपके बिजनेस पे भरोसा है कि इतने टाइम में ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा. ठीक है? नेक्स्ट, देन यू हैव दिस वेंचर कैपिटल्स. देखो, जब सीड के स्टेज पे होगे, अगर आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है, बट यू हैव दैट ग्रेट आइडिया. अच्छा, मेसा के बारे में किसी ने सुना है? व्हाट इज मेसा? सुना है किसी ने? मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस. मेसा, देखो, मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेन करती है इंडिविजुअल्स को कि कैसे फंड को रेज करते हैं और कैसे अपने स्टार्टअप को इवैल्यूएट करके, आइडिएशन करके प्रोसीड करते हैं. ठीक है? सो मेसा इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स जो कि एंजल इन्वेस्टर भी बन सकता है. अच्छा, रतन टाटा को जानते हैं सब? रतन टाटा सर को जानते हैं ना? सो ही वाज एन एंजल इन्वेस्टर. स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज. अर्बन क्लब के बारे में सुना है? अर्बन कंपनी. So Urban Club, Urban Company, ये जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, that was backed by रतन टाटा सर. इन्होंने इन्वेस्ट किया था. Eventually that organization grew. ठीक है? ओला सुना है? ओला सुना है? वेरी गुड. क्रेड सुना है? क्रेड एक कंपनी है, CRED. क्रेड किस चीज की कंपनी है? किसी को आइडिया है? So क्रेड इज बेस्ड, हाँ, वेरी गुड सर. व्हाट्स योर गुड नेम? Vaibhav. Okay, Vaibhav, very good, Vaibhav. So, CRED is basically for the UPI transactions and every transaction that occurs in a digital format. ठीक है? CRED क्या करता है कि जितने भी आपके इंटर कंट्रीज है, लेट्स से इंटर नेशंस है, एक नेशन से दूसरे नेशन तक बैंक ट्रांसफर करने में यू गेट अ हेवी चार्ज ऑफ दिस मीडिएटर फीस. तो CRED, Razorpay, these are की ब्रांच जो कि आपके ये पैसे को कम करता है कि आपको मीडिएशन में बहुत मिनिमम चार्जेस लगे या नो चार्जेस लगे. ठीक है? ओके. सो हाउ डू वेंचर कैपिटल्स वर्क? वेंचर कैपिटल के बारे में सुना है? व्हाट इज अ वेंचर कैपिटल? नहीं सुना है? किसी ने सुना है? अच्छा, देखो, जैसे एंजल इन्वेस्टर इनिशियल फेज में तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, बट वेंचर कैपिटल सिर्फ इन्वेस्ट तब करता है जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो और आपके पास फंड्स कम हो जाए. ठीक है? अगर आपका बिजनेस उन्हें दिखता है कि प्रॉफिट में है, ठीक है, ओनली देन वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो वेंचर कैपिटल इन इस प्रोसेस को फॉलो करता है. सबसे पहले वेंचर कैपिटल फर्म्स होंगी. अगर बिजनेस स्केल कर रहे हैं देन इट्स गुड. अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है देन इट्स वेरी गुड. और मैक्सिमम नेगेटिव कैश फ्लो.
अच्छा, नेगेटिव कैश फ्लो पता है क्या होता है? नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है? अगर मैं सिर्फ बोलूं कि नेगेटिव कैश फ्लो, उससे क्या एजम्पशन आता है ब्रेन में, माइंड में जो एजम्पशन आ रहा है वो बताओ। नेगेटिव कैश फ्लो है बिजनेस में कैपिटल कम हो गया, ठीक है। और कुछ, और कोई सोच सकता है व्हाट इज अ नेगेटिव कैश फ्लो? कुछ भी आइडिया हो नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में? देखो, या तो पैसा बढ़ेगा या पैसा घटेगा, बिजनेस बढ़ेगा या बिजनेस बैठ जाएगा। तो नेगेटिव कैश फ्लो एक वो पॉइंट तक आ जाता है कि बिजनेस में एट लास्ट कहां तक घाटा हो सकता है, ठीक है। या तो ज्यादा से ज्यादा हम assumption कर लेते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक करप्ट हो जाएगा, ठीक है। बट नेगेटिव कैश फ्लो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हाँ, अगर इस स्केल तक आ गया मेरा बिजनेस तो मैं इसके आगे इसमें पैसा नहीं डालूंगा, वहां पे आके मैं बिजनेस रोक दूंगा, ठीक है, टू अवॉइड बैंक करप्ट, ठीक है। वर्क्स? ओके, सो व्हाट वी नो अबाउट दिस आईपीओ, पब्लिक ऑफरिंग्स? किसी को पता है आईपीओ क्या होता है? अच्छा, वो सुना है कि कंपनी में इतना शेयर, मैं इतना कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं, सुना है? कंपनी के शेयर्स बाय होते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में यही तो होता है कि हर कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू आप रखते हैं। अच्छा, शार्क टैंक तो सबने देखा होगा, शार्क टैंक देखा है ना? वहां पे क्या ऑफर करते हैं? इक्विटी 7 CR अगेंस्ट 3% इक्विटी, ठीक है। तो वो 3% क्या है? व्हाट इज दैट 3%? वो मेरे को जानना है। किसी को भी आइडिया है कि 7 CR का 3%? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू कितना होगा, बट व्हाट इज दैट 3% जो अनुभव मित्तर बोलता है या श्री ग्रोवर बोलता है? व्हाट इज दैट 3%? बीकॉम स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। ओनरशिप, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो उस कंपनी में 3% ऑफ द ओनरशिप वो इन्वेस्टर ओन करता है कि कंपनी में जितना भी उसके ऊपर फायदा हो उसका 3% हमेशा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। मेरा मतलब जो इन्वेस्टर है जिसने की इक्विटी बाय की है, ठीक है। ओके, सो हाउ डू यू गेट इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स को रीच आउट कैसे करोगे? कुछ आइडिया है? इन्वेस्टर्स को रीच आउट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कंपनी में जॉब लगाने के लिए क्या क्या तरीके ये बताओ। अगर कंपनी में किसी को जॉब लेना है, किसी की जॉब नहीं लग रही, लेट्स से कि एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ या कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो कंपनी में जॉब कैसे लगेगी? व्हाट इज द बेस्ट मेथड जो तुम लोग सोच सकते हो? न्यूज़पेपर, ओके, मतलब वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? क्या और भी कोई पॉइंट है? वेबसाइट्स, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, रेफरल का नाम सुना है? हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, ब्रोकर्स, वो दैट इज समथिंग एल्स। रेफरल इज बेसिकली कि आपके, लेट्स से कि कोई फ्रेंड है, आपको कंपनी में फ्रेंड प्लेस हो गया, सो नाउ यू आस्क देम कि वो अपने एम्प्लॉयज को आपका रिज्यूम शेयर करवा दे, ठीक है। सो दैट इज द रेफरल। ऐसे ही व्हेन यू कनेक्ट, अच्छा, एक लिंक्डइन सब चलाते हैं, ये बताओ, लिंक्डइन सब चलाते हैं, बट पीपल हु आर इनटू द स्टार्टअप्स, जो कि बिजनेस ओन करते हैं या इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, दे हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज मीडियल। मीडियल डाउनलोड कर देखना, दैट इज मोर ऑफ दिस लिंक्डइन बट फॉर द स्टार्टअप पीपल, ठीक है। सो देयर इन्वेस्टर and the startup people, they both meet together. Okay, so these are the 4 links I'll share with your college professors as well. If someone will plan for a startup in the near future or in the coming future, so इन 4 websites पे जाके you can propose your idea कि ये मेरा idea है, इसके अगेंस्ट में मेरे को कौन-कौन valuation दे सकता है या मेरे बिजनेस में कौन पैसा लगाना चाहता है। So you get a number of leads over there कि हाँ, ये जो पीपल है या ये इन्वेस्टर्स है, दे आर इंटरेस्टेड इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, क्राउड फंडिंग सुना है? दैट्स द लास्ट पॉइंट, दैट्स द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड। क्राउड फंडिंग के बारे में सुना है? क्या होता है क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग के बारे में कुछ भी आइडिया हो? किसी को कोई आइडिया नहीं क्राउड फंडिंग क्या होती है? देखो, बोलो, ज्यादा क्या होगा, या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ हो सकता है।
क्राउड फंडिंग के बारे में कुछ भी assumption माइंड में जो आ रहा हो? Anyone? Yes. Money from people. Money from people. Money from people. Same same. ठीक. So एक चीज देखना कि क्राउड फंडिंग में you raise your idea कि हाँ ये मेरा आइडिया है और उसके अगेंस्ट में जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑप्शन की तरह। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन में आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो कभी कभी देखना कुछ लोग अपना इंस्टा पे रील्स भी आती है, दैट इज फॉर अ क्राउड फंडिंग। वो अपना यूपीआई का स्कैनर लगा देते हैं उस वीडियो के अगेंस्ट में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्राउड फंडिंग, ठीक है। कि वी रिक्वायर दिस मच ऑफ द अमाउंट, करंट अमाउंट इतना है, दिस मच ऑफ द अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट इज अ क्राउड फंडिंग। दैट्स इट। थैंक यू पीपल। Okay, so there's any doubt from anyone of you? ऐसा कुछ भी है जो डाउटफुल है या कोई डाउट लग रहा है? Definitely you can have a vote. Okay, people. Attention this side, please. Just for 2 minutes, 5 minutes more. That's it. Okay. So now मेरे को एक आइडिया दो कि कितने लोग who are studying for the MBA या masters. So we have one person, 1, 2, 3. I can see a few hands here for the MBA. Let's skip the MBA. Who are planning for a masters? That's it. मास्टर्स के लिए कौन प्लान कर रहा है? प्लान कर रहे हो सर? What are your plan for the masters? किसमें करना है? MBA करना है। MBA करना है। और जितने भी मास्टर्स के लिए are they all for the MBA? सबको MBA करना है या कोई MCOM? So masters in communication is it or commerce? What do you stand for this BCom? Bachelor's in commerce? Okay. So MCOM करके so what are your plans sir? To be an accountant or something? अगर कोई मास्टर्स इन कॉमर्स करता है, so what are their next plans in general? Either they opt for a CA or something? ठीक है. So how many of you are planning for being a chartered accountant or something? अच्छा ये तो पता है ना कि CA के पास पैसा बहुत आता है, भर के आता है, ठीक है. So CA के पास रोल्स भी होते हैं मैनेज करने के लिए. एक CA के पास 5 से 6 स्टार्टअप्स होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है. और वो 5 से 6 स्टार्टअप बहुत हेवीली पे करते हैं. दैट्स व्हाई कि CA के पास एक बहुत हेवी कैश फ्लो रहता है और कैश फ्लो का ऑप्टिमाइजेशन भी CA के हाथ में रहता है, ठीक है. कि इस महीने आप इतना इन्वेस्ट करो या इतने एम्प्लॉइज को अप्रेजल दे सकते हो या डिडक्शंस करने होंगे. सो वो कॉल फाउंडर नहीं लेते, वो कॉल लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है. ओके, व्हाट नेक्स्ट? इज देयर एनीवन जो कि So is there anyone else जो कि मास्टर्स के लिए प्लान कर रहा है something? Do we have anyone? No? So all of you will be going for a corporate sector most probably? Okay. Some of you will be in this startup or a business plan? कोई भी अब बिजनेस करता है या करेगा, किसी का प्लान है बिजनेस का, या फिर all of you are going to be into this corporate sector? Please reply back. Why are you so scared? Don't डर रहे हो? Simple answer yes or no. Yes, please. Become students. You're so active. Come on. Sir, मैं आज करता हूँ. You are? Business plan का start. Okay, you are planning for a business. Yes. Okay, what sort of business, ma'am? Food industry. For food industries. Okay, so you are planning something कि food sector में जाना है. So what are the things that you will be requiring? एक तो accountant. What are the initial offerings? Yeah, what are the initial plans you have? Food sector में जाना है कौन से लाइन में? So you will have a bifurcation. Either bakery में जाना है या रेस्टोरेंट ओपन करना है या किसी फ्रेंचाइज. You want कि एक रेस्टोरेंट ओपन करना है. So एक entirely startup. Okay.
works. So for the restaurant, when we speak कि आपको अगर एक restaurant open करना है, so what are the things you require for opening a restaurant? कुछ भी माइंड में है? सर बहुत सर बहुत सारी चीजें में एक तो बताओ. सर सबसे प्लानिंग वगैरह करने करेंगे I cannot hear you. सर प्लानिंग वगैरह करने Planning करनी है, very good. सर फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करने करेंगे Organize करना है. देन लेबर एम्प्लॉय टास्क Okay, good. So she has a clear thing कि हाँ अगर एक रेस्टोरेंट ओपन करना है तो इतने से इतने टाइम में ओपन करना है. प्लस मेरा फाइनेंस या कैश फ्लो इस डायरेक्शन में होना चाहिए. Similarly, that works for everyone. हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है. Until unless अगर वो नहीं हुआ, so that will lead your business into a dip side. लोकेशन लेआउट और हाँ, exactly. So location, layout, and everything is an important thing. Very good, ma'am. What's your good name? अर्पण कुमारी अर्पण कुमारी Arpan Kumari. Thank you so much, Arpan. You have been a wonderful audience. Thank you. Now I would like to invite the Ranjit ma'am to come upon the stage and give away our vote of thanks. A very good afternoon to everyone. It's a privilege to extend the vote of thanks to our today's guest, Mr. Atharvya Srivastava sir. So I extend my heartfelt thanks to you, sir. You started a session with the very basic terms of entrepreneurship and explained all the terms, all giving very practical examples, and then how to start a business, the process, and actually supported by all the practical examples. I'm sure the student must be benefited out of it, and sharing the links so that even after your session they can get benefited. So thank you so much for the same. I would also like to extend my gratitude to our director sir, Dr. Amit Rai sir, for felicitating the guest, and the faculty coordinators, Ms. Archana Kaushik ma'am, Ms. Shivani Sharma ma'am, Ms. Garima Goyal ma'am, for coordination and your contribution, and the student coordinator Rudrakshi Chaudhary and Mayuri Gupta for their coordination and the smooth conduction of the session. My heartfelt thanks to all the faculty members present over here, and finally all the students to making this session very interactive. Thank you for your participation. Thank you very much. Thank you.